What is the subject here? Shyam and Sunny. Shyam and Sunil will be the subject. And what will be the predicate? And be to Our best friends. यानी कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट. नीतू टोल्ड हर टीचर अबाउट हर पेट्स डेथ. नीतू ने अपने टीचर को अपने पेट की डेथ के बारे में बताया. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? बताइए. नीतू ने अपने टीचर को अपने पेट की डेथ के बारे में बताया. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? कौन बता रहा है टीचर को? नीतू. वेरी गुड. तो नीतू बता रही है और नीतू अपने ही डॉग के बारे में बता रही है, अपने ही पेट के बारे में बता रही है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? नीतू. सब्जेक्ट क्या होगा? नीतू. और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? Told her teacher about he pet death. वेरी गुड. अयान को अब समझ में आने लगा है ना अयान? Yes, ma'am. Good boy. Let me just slow down the volume a little bit. Okay, next. Jaya is learning piano. So what will be the subject here? Navedu, Yes, ma'am. tell me. Jaya Is Jaya. learning. Very good. Jaya. is Jaya जो है आपका सब्जेक्ट हो गया. And is learning piano is your predicate. predicate. My favorite cartoon character is Doraemon. Okay, तो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्या हो गया? डोरेमोन है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? Favorite. फेवरेट. फेवरेट के बारे में बात हो रही है. Doraemon. यहाँ पर हमारा कार्टून कैरेक्टर जो है ना, सिर्फ कार्टून कैरेक्टर. हम कार्टून कैरेक्टर का बता रहे हैं कि हमारा जो कार्टून कैरेक्टर है वो हमारा डोरेमोन है. तो कार्टून कैरेक्टर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. व्हाई इट इजंट सेलेक्टिंग? Cartoon character will be the subject here. Hello, Ashita, you are a bit late. Okay. So we were discussing the homework questions which I have given you. Ma'am. Very good. Check your answers. See whether you have done it right or wrong. Green one are the subject and pink one are the predicate. Ma'am, green one is Raja. Very. I have given homework questions as well. These were some homework questions. Check these. Check your answers. Okay. I love to watch television. So what will be the subject here? Raja. Who is saying Raja? Is playing with her friends. No, I'm not talking about these sentences. I have given some more sentences yesterday. Haven't you checked your WhatsApp, Ashita? No. No, that's why you are a little confused. Check your WhatsApp. I have sent a few questions on the group, WhatsApp group. Okay. So you need to copy the questions and then you have to circle the subject and underline the predicate. So we were just doing, just checking the answers. Okay. Okay. So I love to watch television. What will be the subject here? Subject here.
No. Here we are talking about that I love to watch television. So I am talking about myself only. So I will be the subject here. Okay. And love to watch television will be the predicate. Predicate. Okay. Then last is I am not going to play outside. यानी कि मैं बाहर खेलने नहीं जा रही या नहीं जा रहा. तो what will be the subject here again? I. Very good. I will be the subject here and remaining will be the predicate. Okay. I hope subject and predicate are very much clear now. Navedu, is clear Yes. to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's start with the today's class new topic. Today we will be looking at the types of sentences. Okay, so basically we have 4 types of sentences. Listen very carefully. Keep your notebook and pencils handy because you need to write certain things which I will be asking you to write. Okay, so keep your notebook and pencil handy. Ma'am, this. Yeah. Carry notebook and pencil. मंगा रही हूँ. Okay. So basically, when we talk about sentences, we know sentence is something which has a complete meaning. So there are 4 different types of sentences. Okay. Number 1, look at here, assertive or declarative. Assertive or declarative. This is the first kind of sentence. इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नंबर 1, एक तो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है. ठीक है, ये आपको किसी चीज के बारे में सर्टेन इंफॉर्मेशन देंगे जो कि खुद में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी. ओके. एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, सुमिता इज गोइंग फॉर स्विमिंग क्लास. तो सुमिता कहाँ जा रही है? सुमिता स्विमिंग क्लास के लिए जा रही है. राइट. तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है और सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिंपल सेंटेंसेस है. इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं तो कोई एग्जांपल बताएगा मुझे, कोई भी एक सिंपल सेंटेंस का? एनीवन? I am going in the park. ओके, आई एम गोइंग टू द पार्क. ये आपको सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यू आर गोइंग टू द पार्क, कि आप पार्क जा रहे हो. Ayan, give me one example of a simple sentence. You are on mute. Unmute yourself. Ma'am, his mic no on. Yeah, that's fine now. Yes. Going the park. आप भी पार्क जा रहे हो, सेम सेम सेंटेंस हो जाएगा. कुछ और सेंटेंस बनाओ. ये तो आशिता ने बना दिया सेंटेंस, आई एम गोइंग टू द पार्क. Navedu, be prepared with the sentence. You want to say, Ashita? You want to contribute one more sentence? Yes. Yes, tell me. I am playing football. Very good. I am playing football. Very good, Ashita. Clap for Ashita. Clap for Ashita. Everyone. Clapping तो कर दो आशिता के लिए. जमा करना है ये कर. Okay. Then हमारा नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव. अब मूवीज देखना किस किस को पसंद है? कौन कौन मूवी देखता है? अयान देखता है. अयान, दबंग मूवी देखी है? क्या? दबंग मूवी देखी है? No. नो. अच्छा, सिंघम मूवी देखी है? सिंघम भी नहीं देखी. अच्छा, Godzilla. गॉडजिला देखी है.
मैं गॉडजिला का एग्जांपल कैसे दूं इसके लिए? ओके चलो मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा हर मूवी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है ना? और जब विलन को पकड़ लिया जाता है तो वो उसको पुलिस के पास लेके जाते हैं, है ना? तो पुलिस क्या करती है, उससे पूछताछ करती है ना, सवाल जवाब पूछती है, बता तूने पैसे कहाँ छुपाए थे, बता तूने खजाना कहाँ छुपाया है, पूछते हैं ना ऐसे करके, है ना? सवाल जवाब करते हैं, उसकी खूब पिटाई करते हैं फिर विलन की, होता है, देखा है मूवीज में। तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंटेरोगेट कर रहे हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं, ये हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं पूरा तो करना और पड़े। एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से। जैसे कि आर यू गोइंग टू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? सिमिलरली Yes. Yes, और ma'am. कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? व्हाट इज योर नेम, राइट? व्हाट इज योर नेम, How are you doing? हाउ आर यू डूइंग, वेरी गुड। What are you doing? व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग दीज डेज। और क्या हो सकता है नवेदु, टेल मी। बताइए, कुछ तो कंट्रीब्यूट You करिए। you are going to park. सॉरी, okay, let me check one more. Will you lend me some money, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे किस टाइप के क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं? इंटेरोगेटिव, Interrogated. जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिक्लेरेटिव या असर्टिव कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सर्टेन इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। इज दैट क्लियर? Yes. कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? No. ओके, आई वांट यू गाइस टू राइट दिस टॉपिक। डालो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉपीज के अंदर टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सारे बच्चे। टेक आउट योर नोटबुक्स, डालिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और ये लिखना शुरू करिए। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसके बारे में लिखिए। मैम इससे क्या करना है? इसको आपको अपनी कॉपीज में लिखना है ताकि आपको याद रहे, और जो मैं आपको होमवर्क दूंगी उसको करने में आसानी हो। अगर कुछ चीज दिमाग से निकल जाए तो रिवाइज कर लो आप, ठीक है? इसलिए इसको कॉपी में लिख लीजिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अभी हमने सिर्फ 2 टाइप करे हैं, ठीक है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जो कि हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। या तो आप उनको असर्टिव सेंटेंसेस बोलेंगी या फिर आप उनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। ओके Okay. Okay, ma'am. जरूरत के पीछे खुद ही आ गया। मैं जूम करूं, अगर किसी को मेरी स्क्रीन ज्यादा विजिबल नहीं है तो मैं और जूम कर दूं, आपको और बड़ा बड़ा दिखेगा फिर। No, ma'am. ओके My God. मम्मी तब मैं पैंती तेरा चपटी माया दादी को लाला वो कर दिया।
कितनी प्यारी फोटो उतना मार दिया और मेरे हाथ बैक पे जाना है इसने क्या स्क्रीन पे गया है बैक नहीं हो रहा है जितने सारी चीजें खुल गई ये तो हो गया ये वाला नहीं नो ये वाला नहीं Is everything okay, Ayan? Is my screen visible? Yes, ma'am. ऐसे वो वाला नहीं होता Once you complete these two, just let me know. I will move to the other two. Okay. And then we will do a short exercise and then we will wind up for today. Okay. look at ma'am क्यों पिल्लो उधर रखो गंदी हो जाती हैं ऐसे बार बार फोन डालो क्या आ जाओ ये पिल्लो रखो बहुत देर से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ जब से आप गई हो ना तो तुम्हें जरूरत क्या है क्यों करने करके बहुत दिन करके बार-बार अपने आप को बड़ा कर ऐसे लोग सुनो आज कितना अच्छा किसी भी चीज में किसी को भी डाउट हो, if anything which is unclear, you can ask me. Okay, don't hesitate कि मैम क्या सोचेंगी और बच्चे क्या सोचेंगे कि समझ नहीं आया, तो आप लोगों को पूछ लेना है जो भी चीज क्लियर नहीं हो. Is that okay? ओके मैं अपनी साइड से म्यूट कर रही हूँ so that आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं आए. चलो नहीं हो रहा इसने पता नहीं कैसे खोल दिया ओवन में से वो निकाल रखी है उसने यहाँ ले आओ मेरे पास और चटनी भी ले आना चटनी खाना खाओ Ayan, are you writing? You're not writing anything? Ma'am, I am writing. Only Ashita and Navedu were writing. What you were doing since so long? It's for your own benefit. Complete Okay. करनी। This is nothing to do with me. I have already started this thing. This is for you to note it down, to keep a record, whatever you have studied. Once you are done with this work, let me know. I will move further.
जूम करना है मैम। Yes, say. Please do zoom this. Okay, Zoom okay. this. Okay, ma'am. Is that okay? Okay. You have to write till here only, till money. Okay? Will you lend me some money? You have to write it till here only. Okay? And I will be marking attendance as well. So before attendance, nobody is allowed to leave the meeting. Is that okay? Okay. Be a little faster. Ma'am, I'm fasting. Ayan, declarative sentences कौन से होते हैं? मैम जैसे कि I am playing football. I am going to the park. This is our sentence. बेसिकली सिंपल सेंटेंसेस. कोई आपसे पूछे ना कि भाई आशिता, अयान या नवेदु हमें उसके बारे में बताइए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो आप सिंपल बोलेंगे कि भाई हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. कैसे होते हैं? Simple sentence. यस, सिंपल सेंटेंसेस. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? What is your name? How are you doing? Or will you lend me सम So मनी. तो money. एग्जाम्पल्स हो गए. या गुड. बेसिकली इसमें होता क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है. दे आस्क अस द क्वेश्चंस. ये हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं. ओके. यस. This is homework. No, this is classwork only. Homework will be given. Don't worry about it. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि उनके एंड में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा. दे विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है ना? Yes, ma'am. फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है. Yes, ma'am. फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है. और फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है. तो जो सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पे एंड होंगे वो आपके कौन से होंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. I hope it's clear now. Yes, clear, ma'am. Navedu, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Ayan, No doubt. Ashita, no doubt. Okay, good. Have you completed this work? No, ma'am. This last one. Okay, do it fast. Yes. Then we will be moving on to the next topics. No, ma'am. Yes, I am first.
कितना गरम है, क्या? ये है गरम। Shall we start with the next part? Yes, ma'am. Okay. Then the Yes, ma'am. third type of sentences are imperative. The third type of sentences are, tell me, imperative. Okay. So imperative में क्या होता है, इसके अंदर ना 4 चीजें याद रखना कि या तो इसके अंदर आपको ऑर्डर दिया जाएगा, या आपसे किसी चीज की रिक्वेस्ट करी जाएगी, या तो आपको किसी चीज की कमांड दी जाएगी, या फिर एडवाइस दी जाएगी। ठीक है। ऑर्डर जैसे कि मम्मी बोल देती है गो एंड शट द डोर, तो ये ऑर्डर है, यानी कि आपको हुक्म किया जा रहा है। या फिर मैं बोलूं प्लीज हेल्प मी इन माय वर्क, मुझे मेरे काम में मदद करो, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, आप पे जबरदस्ती तो नहीं है कि आप मेरे काम में मेरी हेल्प कराएं ही कराएं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्टैंड एट ईज, अब स्कूल के अंदर असेंबली होती है तो पीटी टीचर क्या कहती है, स्टैंड एट ईज, अटेंशन, है ना। लेफ्ट मूव राइट और मूव लेफ्ट, समथिंग मार्चिंग वगैरह की मूवमेंट्स होती हैं, तो वो सब आपकी क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं। ओके। फिर एडवाइस यानी कि किसी को कोई सलाह देना, जैसे कि डॉक्टर कहते हैं रोजाना एक एप्पल खाया करो, ठीक है, वो आपके लिए हेल्दी होता है, तो ये एक एडवाइस है। या फिर लोग बोलते हैं स्मोक मत किया करो, ठीक है, जो चीज हमारे भले के लिए है ना, वो चीज हमारी एडवाइस है, दिस इज फॉर आवर बेटरमेंट। तो इम्पेरेटिव तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो आपको ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, या एडवाइस देते हैं। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स थे। ओके, इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर हम ऑर्डर का एक और एग्जांपल लें, तो ऑर्डर का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, मम्मी क्या क्या ऑर्डर करती हैं बताओ भाई। कभी किसी की मम्मी ने कोई हुक्म किया है, करो तो होगा। आशिता, आर यू सेइंग समथिंग? Sorry, repeat again. आई एम सेइंग आपकी मम्मी ने कुछ ऑर्डर किया है कभी आपको कि आशिता डू दिस और डू दैट, कोई हुक्म किया हो तो उसका हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली मम्मी बोलती हैं गो एंड फिल द वाटर बॉटल। किस किस की मम्मियों ने पानी भरवाया है बॉटल्स में, बताइए। हमारी आपकी मम्मी ने, तो मम्मी ने कौन सा टाइप का सेंटेंस बोला था, इम्पेरेटिव का। ठीक है, तो इम्पेरेटिव में क्या होता है, आपको क्या करा जाता है, आपको ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, गो एंड फिल द वाटर बॉटल्स। देन नेक्स्ट था रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी इन माय वर्क, मेरे काम में मदद कर दो, है ना। या फिर आप देखोगे जहां पर आपका प्लीज प्लीज जैसा वर्ड आ जाए, प्लीज हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, ठीक है, हेल्प का वर्ड आ जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई इंसान आपसे मदद मांग रहा है। ठीक है, जैसे कि अब स्कूल में नॉर्मली होता था, हमारी पेंसिल खो गई भाई, अब हमें किसी से पेंसिल लेनी है, तो हम क्या कहते थे, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल, हम पहले पूछते थे, तो वो कहता था हाँ है, तो फिर हम क्या कहते थे, कैन यू प्लीज लेंड मी योर पेंसिल, कैन यू प्लीज lend me your pencil। या फिर ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, एक तो ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना, देखो कैन यू लेंड मी योर पेंसिल, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, लेकिन इसके अंदर प्लीज वर्ड आ गया, तो ये इम्पेरेटिव भी है, तो आप इसको दोनों कैटेगरीज में डाल सकते हो। इसको आप किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हो, कैन आई बोरो योर पेंसिल, कैन आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे कैसे हो गए, आपके रिक्वेस्ट वाले हो गए। बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना, लैंड मीन्स होता है, लैंड का मतलब होता है
लेट मी जस्ट राइट इट इन द ब्रैकेट. उधार देना. ओके. और बोरो का मतलब होता है उधार लेना. उधार लेना. ओके. ओके. फिर हमारा लास्ट आ जाता है कमांड, जैसे कि स्टैंड एंड टीज, अटेंशन. ठीक है. मार्चिंग ऑन द स्पॉट, बिगिन. ठीक है, ऐसे कराते हैं ना पीटी टीचर. लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. तो ये सारे कैसे टाइप के सेंटेंसेस हैं आपके? इम्पेरेटिव है. इज दैट ओके? ओके. इज दैट ओके मैम? इज दैट ओके? ओके, राइट इट डाउन फास्ट. यस मैम. Note it down in your copies. नो मैम. No, ma'am. Note it down. I am asking you to note down now. I am giving you 5 minutes to note this down, not more than that. It's 8:36 right now. At exact 8:41, ओके. I will start the next part. Is that okay? ओके. Okay. अभी नहीं की है. आदम. Ayan, do your work. कल आपको कल भी देगा. Is there anything which is unclear, which you haven't understood? Anything you want to ask? अरे देखना मेरे पिक्चर आ रही है. हम उनकी आ रही है. हमें की और बाकी सब ये आ रहा है उनकी और मैम की. मैम पे कर सकते हैं. नहीं पता नहीं इतनी नाक में से पानी निकल रहा है. इधर यार. जरा रुमाल दे दो. अलमारी में आराम से खोलना. छू तक आवाज ना है. Anything you want to ask from this topic? No, ma'am. Everything is No, clear? ma'am. Everything is No, clear? ma'am. No, ma'am. Everything is not clear? No, ma'am. तो पूछो, क्या पूछना है, क्या डाउट है, बताओ. क्या समझ नहीं आया? मैम सब समझ में आ रहा है. नवेदु को समझ नहीं आया ना, वो बोल रहा है कि क्लियर नहीं है. क्या समझ नहीं आया बताओ. मैम हमने ढंग से सुन नहीं पाया. मैम ढंग से सुन नहीं पाए. इम्पेरेटिव वाला नहीं सुना, ये पिछला वाला? यस मैम. कौन सा वाला बेटा, बताओ तो सही. पिछला वाला कि अभी जो कराया है वो? मैम अभी जो करवाया है वो. देखो, हम जब थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं ना, तो हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस है इम्पेरेटिव. ओके. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या होता है? हमारा ऑर्डर होता है, या हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए, या हम किसी को कमांड करते हैं, या किसी को एडवाइस करते हैं. ये 4 चीजें होती हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती हैं. ठीक है. जैसे कि मैंने कहा गो एंड शट द डोर.
तो मैंने ये आप पे ऑर्डर किया, आप पे हुक्म किया, राइट तो ये ऑर्डर हो गया। या फिर आपकी मम्मी बोलती होंगी जाओ नवेद जाओ जाके पानी भरवाओ, है ना, बॉटल्स में पानी भर लो। तो ये मम्मी हुक्म कर रही है आप पे कि आपको काम करना है। तो आपकी मम्मी ने बोला गो एंड फिल द वाटर बॉटल, तो ये भी एक ऑर्डर है, ठीक है। फिर मैं कह रही हूँ प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क, कि मेरी मदद करो मेरे काम में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर सकती हूँ, मैं आपसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। इसी तरीके से मैंने कहा कैन यू प्लीज लेंड मी योर पेंसिल। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें बताई, एक तो यहाँ पर ये कि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, और इसमें आप एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि इसमें ये प्लीज वर्ड आ गया ये, ठीक है। इस प्लीज के आने की वजह से आप क्या कह रहे हो इसको कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इट कैन बी एन इंटेरोगेटिव, इट कैन बी एन इंपेरेटिव। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप इसको अपना इंपेरेटिव लिखते हो तो भी ठीक है, आप इसको अपना इंटेरोगेटिव लिखते हो तो भी ठीक है, ओके। और मैंने बताया था लैंड का मतलब होता है उधार देना, और इस सेंटेंस को हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, कैन आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। फिर हमने चौथे की बात करी थी कमांड की, जैसे कि हमें पीटी टीचर कमांड देते ना, स्टैंड एट ईज, अटेंशन, सुबह मॉर्निंग में, तो वो सारी हमारी कमांड्स होती है। इज दैट ओके नाउ? Ma'am, I have done. Very good. Navedu, is this clear now? Yes. Yes, ma'am. Any doubt now? No, ma'am. Okay. Moving to the last part of this topic, the fourth type of sentence. Navedu, please remove the hand-free microphone from your mouth. Yeah, it's creating a disturbance. That's fine. Now, advice do not smoke, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि आपको स्मोक नहीं करनी because it is harmful for you. Yes. मेरी कॉपी फुल भर गई है तो फिर इतनी जल्दी भर गई? हाँ, क्योंकि आधे पेज बचे थे। अच्छा, मैंने तो बोला था कि नई कॉपी लगा लो। चलो कोई बात नहीं, अभी कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, फिर बाद में एक ही जगह काम करना है, ठीक है। Okay. Then the fourth type of sentences are exclamatory sentences. Okay, exclamatory sentences कौन से होते हैं जो बेसिकली आपको Ma'am. आपके जी मैं वो वाला कर नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं क्लास नोट्स दूंगी, व्हाट्सएप पे आएगा, जो रह गया वो आप लिख लेना, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं जो आपके इमोशंस यानी कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, खुशी है, गम है, एक्साइटमेंट है किसी चीज को लेकर, उसको एक्सप्रेस करने में आपको मदद करते हैं, वो सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये मार्क देख रहे हो, दिस मार्क अंदर वाला, Yes, इसको ma'am. कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं? Exclamation mark. एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, या इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोल देते हैं। तो ये सेंटेंसेस में लगाया जाता है, जहां पर भी आप ये वाला मार्क देखेंगे ना सेंटेंसेस में, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से टाइप का सेंटेंसेस है, वो सारे आपके एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस है। इज दैट ओके नाउ? Okay. जैसे कि हमने बात करी हुर्रा, वी वन द मैच, हम खुशी से चिल्लाते हैं ना, हुर्रे हम जीत गए, हम जीत गए, है ना, जब कोई मैच होता है तो हुर्रा क्या है आपका, एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है, हुर्रा। तो ये आपकी अंदर की एक्साइटमेंट को बता रहा है। या फिर जब आपके चोट लग जाती है तो आप क्या कहते हैं, आउट, मेरे लग गई, है ना। या कहीं से ठोकर लग जाती तो मुंह से क्या निकलता है, आउट निकलता है ना सबके। Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है,
यहाँ पे आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो। या फिर एक वर्ड होता है एलास। एलास का मतलब होता है बहुत ही इंतहाई अफसोस के साथ। ठीक है, जब आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एलास, यानी कि अफसोस, इतना अफसोस कि मेरा पेट मर गया। ठीक है, तो ये सारे आपके एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आपकी फीलिंग्स को। तो such words are known as exclamatory words, and such sentences which helps you to express your feelings, your emotions, are known as exclamatory sentences. Any doubt? No, ma'am. क्या होते हैं exclamatory sentences? Navedu will tell me. Ma'am, please repeat again. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, जैसे कि आपकी खुशी, गम, ठीक है, आपको कुछ दुख हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। मैम, जब हमें चोट लगती है तब हम आउच बोलते हैं। हाँ, तो वो आपके अंदर का पेन दिखा रहा है ना, आपका दर्द बता रहे हैं कि अरे मेरे लग गए, आउच मेरे लग गई, है ना। या फिर जब आप खुश से होते हैं तो आप क्या कहते हैं? अच्छा चलो, आशिता की मम्मी ना आशिता के लिए फेवरेट कलर क्या है आशिता का? रेड। रेड। तो आशिता की मम्मी ना आशिता के लिए रेड कलर की फ्रॉक लेकर आई। ठीक है, तो आशिता व्हाट यू विल से? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, है ना। तो आप वाओ किस सेंस में बोल रहे हो? आप अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो, खुशी में। खुशी में। तो वो वहां पे वाओ वर्ड जो था, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ओके, तो आपने बोला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस लिख लो या फ्रॉक लिख लो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने इस वाव से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये आपका इमोशन, आपकी फीलिंग एक्सप्रेस हुई है। तो ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं? एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंसेस हैं। इज दैट क्लियर नाउ? या फिर आप कह सकते हो नवेदु के पापा नवेदु के लिए रिमोट कंट्रोल कार लेकर आए। ठीक है, एक नई कार आई तो आपने क्या कहा? yippee, yippee, है ना, बोलते हैं ना yippee, yes, I got the new car, new car, बोलते हो? yes ma'am। तो यहाँ पर yippee भी एक एक्साइटमेंट वर्ड है जो कि आपकी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, आपकी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? yes ma'am। Any doubt, Navedu? Is everything clear? yes ma'am। Okay. So here are a few sentences for our practice. okay। So you have to tell me, first of all, this question is for Navedu. How was your day in school? किस टाइप का सेंटेंस है ये? How was your day in school? इसमें क्या हो रहा है सेंटेंस में? नवेदु, बताइए। अच्छा, कौन कौन से थे? 4 टाइप के। नंबर 1 डिक्लेरेटिव। मैम नो क्लियर। नो क्लियर, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। नंबर 1 डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव, नंबर 2 इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, imperative, एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी। exclamatory। आपका डिक्लेरेटिव कौन से थे? जो कि सिंपल सेंटेंसेस थे। ठीक है, इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस थे? जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। इम्पेरेटिव कौन से थे? जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस थी। और फिर चौथे आपके एक्सक्लेमेटरी थे जो कि आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है जी। जैसे कि प्लीज हेल्प मी माय वर्क। तो ये किस टाइप का हो गया? इम्पेरेटिव। imperative। यस।
अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। जब आप इनके वर्ड्स और इनके डेफिनेशन याद कर लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, अब आप देखो इसमें क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क होने की वजह से ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया? मैम हम्म, बट आई एम कंफ्यूज। कंफ्यूज्ड इन यस किस चीज में कंफ्यूज है? टेल मी। मैम फोर्थ। एक्सक्लेमेटरी में, यस एक्सक्लेमेटरी में क्या हो रहा है? हमारे बेसिक इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि हुर्रा, वी वन द मैच, आपकी एक्साइटमेंट दिख रही है, आपकी खुशी दिख रही है, या फिर आउच माय लेग हर्ट्स, यानी कि आपका दुख दिख रहा है, कि आपको दर्द हो रहा है, यू आर इन पेन। या फिर जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, यानी कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो आपकी खुशी, गम, दुख, दर्द, आपकी फीलिंग्स जो बता रहा है वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इज दैट क्लियर नाउ? यस क्लियर। सो फर्स्ट इज, या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो जिसमें पूछताछ करते हैं, जैसे कि मूवी में पूछताछ करी जाती है, पुलिस वाले पूछताछ करते हैं एक विलन से, तो क्या करते हैं वो? इंटेरोगेट करते हैं। तो ये सेंटेंसेस कौन से हो गए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुई ये चीज? यस नवेदु क्लियर हुई? यस मैम। वी विल बी प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, ओके। हम इसको कल भी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिर क्लियर हो जाएगा एकदम से। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, है अभी मैंने पढ़ाया है और अभी याद हो जाएंगी, लेकिन यह है जितना मैंने समझाया है उतना आपको समझ में आ गया है कि डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, इंपेरेटिव कौन से होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं। समझ में तो आ गया है ना? यस मैम। बस चीज ये है कि आपको अब इसको अपनी मेमोरी में रिटेन करना है, यानी कि इसको दिमाग के अंदर परमानेंटली फिट करना है, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने से वो चीजें फिट हो जाएंगी, और थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा कि कौन से टाइप के होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है, डू योर असाइनमेंट्स इन क्लास ऑन टाइम। तो ये क्या है आपका? तुम्हें अपने असाइनमेंट्स क्लास में करने चाहिए टाइम पर। क्या है ये एक एडवाइस है, टीचर की एडवाइस, ओके। एडवाइस। यस, एडवाइस, दिस इज एन एडवाइस। तो ये एडवाइस है, इसलिए ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया? एडवाइस। तो ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्पेरेटिव। फिर आई एम सो एक्साइटेड आई पास द टेस्ट, यानी कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मतलब मैंने टेस्ट पास कर लिया। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? हैप्पी। ये हैप्पीनेस को बता रहा है। तो ये किस टाइप का है ये सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। थोड़े से वर्ड्स डिफिकल्ट है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, याद हो जाते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस में। फिर है, वॉकिंग अप दैट माउंटेन इज वेरी डेंजरस, यानी कि उस माउंटेन पे जाओगे तो बहुत डेंजरस है। तो ये भी क्या होगी? अगेन एडवाइस हो गई। तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया आपका? फिर से इम्पेरिसन। इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। फिर यू नीड टू गेट विद द प्रोग्राम, यानी कि आपको प्रोग्राम के साथ रहना है। तो ये क्या है आपका? डिक्लेरेटिव, आपका सिंपल सेंटेंस है कि आपको प्रोग्राम के साथ साथ चलना है। यू हैव टू गेट विद द प्रोग्राम, जो जो प्रोग्राम में हो रहा है आपको उससे अवेयर रहना है। ओके मैम। अब मुझे ये चीज बताओ, जितना मैंने ये समझाया टाइप्स वगैरह, ये सारे टाइप्स क्लियर हैं कि नहीं है? किसी में कोई डाउट है कि भाई डिक्लेरेटिव क्या होते हैं? दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, आपको सर्टेन इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं,
और ये फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं। मैम इसमें खाली दिस ये वाली लगाई जाती है। Yeah, only full stop is there. Ashita, I'm unable to see your notebook clearly, na? You can send me a photograph of your notebook, na? I will see to it. Okay. सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। फिर इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं ये। फिर इम्पेरेटिव में आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस, ये चारों चीजें दी जाती है। फिर आपके एक्सक्लेमेटरी में आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को पेश किया जाता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। नो No? मैम। नो मैम। Okay, नो। let me just save these changes. Okay. Ayan has left the meeting, I guess. Yeah, he has left the meeting. Okay. So I will mark the attendance. Okay. And check your WhatsApp by tomorrow morning. Okay. I will be posting some home task on WhatsApp group. So just go through the task, and if there is anything which is not clear to you, you are free to message me or call me anytime. Okay. ओके। कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। That's all for today. ओके मैम। Okay. Bye bye. You all can leave the meeting. बाय बाय मैम। Bye bye. Navedu, you want to say something? नो मैम। No, so you can leave the meeting. No problem. You can leave the meeting, Navedu. मीटिंग एग्जिट कर दीजिए आप। क्या कह रही हैं आप? मैं बोल रही हूँ आप मीटिंग को लीव कर दीजिए। नीचे ना लीव का ऑप्शन आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। मैम ऊपर लीव आ रहा है। हाँ हाँ, तो आप लीव पे क्लिक करिए, फिर उसमें लीव द मीटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका लीव हो जाएगा।